Hello students, this is accounting for partnership firm. Now I will show you final account of partnership. In my previous videos I have shown you how to prepare partners capital account under different methods, how to prepare profit and loss appropriation account. Today I will show you how to prepare final account of partnership. You already learned in the previous class 11, final account of sole proprietorship, where you have to prepare trading account, profit and loss account and balance sheet. Same thing you have to do here also. The difference is that was sole proprietorship and this one is partnership. So whatever the profit we will get, that profit will be divided among the partners. For this purpose we have to prepare profit and loss appropriation account. So profit and loss appropriation account already I have shown you, and trading account, profit and loss account and balance sheet you have already learned in class 11. So here in this chapter, final account of partnership, you have to prepare trading account, profit and loss account, profit and loss appropriation account and balance sheet. Okay, so I'll read this question, you try to understand. Okay, you see, following is the trial balance of Rana and Raju as on 31st March 2018. So this final account is very important for the final exam that you will get for 8 marks, compulsory question. Okay, so you try to understand here. First it is given here trial balance, so we'll read one by one item. Nothing is new, because already you done in class 11, and profit and loss appropriation account already you learned how to prepare. Okay, so now you see here trial balance given. So this one is debit side and this one is credit side. First item given machinery. The machinery is fixed assets. The fixed assets, these assets where you will record in balance sheet, right? This machinery you have to record in balance sheet, higher asset side. Furniture, this is also assets, fixed assets. This is also you have to record where? In balance sheet, asset side. Okay. Then rent. Rent is indirect expenses. Direct expenses we have to record in trading account, and indirect expenses we have to record in profit and loss account. So this rent is indirect expenses. So that's why this one will record profit and loss account, debit side. Okay. Next, salary. This is also indirect expenses. So you have to record profit and loss account, debit side. Okay. Debtor is assets, current assets. So these assets you have to record in balance sheet, asset side. Okay, so this one you have to record balance sheet. Cash in hand assets, cash at bank assets, so both also you have to record here in balance sheet, asset side. Okay. Next point, drawings. Both the partners drawn money from the business for the personal use, which is known as drawing. So when partners withdraw money from the business, that means their capital will decrease. So this drawing you have to adjust in balance sheet liability side. These two amount of Rana and Raju you have to deduct from the capital. Okay, so these two item where you have to show balance sheet liability side. Okay, and you have to deduct from what? From capital. Okay. Next, closing stock. This closing stock you have to show where? In balance sheet, asset side. Okay. Assets. Commission. Which side it is given in trial balance? Debit side given. It is debit side. Okay, this is debit side. That means this commission is an expense. Okay, so this one also you have to show here in profit and loss account, debit side. Okay. Next you see here what is given, credit side, capital given of both the partners. So when amount invested into the business, that is known as capital. So here Rana invested capital how much? 65,000, Raju 40,000. So this is the liability. Okay, so this one you have to show here in balance sheet liability side. Okay, balance sheet liability side you have to
show, and from this capital you have to deduct what? Drawings. Okay. Next is creditor. Creditor is liability, so this one you have to show here in balance sheet liability side. Okay. Next item, commission. Now commission, see which side it is given? Credit side, so that's why this is income. Okay, so this one you have to show here in profit and loss account. This indirect income you have to show in profit and loss account, credit side. Okay. Bank loan. Okay, this loan is liability, so that's why this one you have to show here in balance sheet liability side, you have to show. Now you see here trading account gross profit given. That means we no need to prepare trading account here because already trading account gross profit given. Okay, that means we have to prepare profit and loss account. Trading account profit here given. Okay, so this gross profit we have to transfer here in profit and loss account, credit side we have to transfer. Okay, now we'll check some additional information, or you can say adjustment. So question what asks to prepare here? Prepare the profit and loss account and profit and loss appropriation account. So you know well how to prepare profit and loss account and profit and loss appropriation account. This already you learned in class 12, I have shown you. So this one also you have to prepare for the year ended 31st March 2018, and also asks to prepare a balance sheet of the firm. The balance sheet already you learned in class 11, as on date, the date after taking into consideration the following additional information. So some additional information also given here, you have to adjust. So you remember always the adjustment here given. There are total 4 adjustments given. Okay, so you see what we'll do. First it is given depreciate machinery 10% per annum and furniture 20%. So depreciation is non-cash item. The depreciate is charging on machinery, right? हम लोग जो ये हमें डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन क्या पर लग रहा है? मशीनरी पर लग रहा है और क्या पर लग रहा है? फर्नीचर पर लग रहा है ना नहीं? तो एडजस्टमेंट में अगर डेप्रिसिएशन दिया तो इसका 2 टाइम्स इफेक्ट होगा, एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इफेक्ट होगा और एक बार बैलेंस शीट में. ओके, तो दिस मशीनरी इज फिक्स्ड एसेट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस डेप्रिसिएशन यू हैव टू शो हायर in profit and loss account debit side because this is non-cash item, non-cash expenses. Okay, so depreciation you have to show higher in profit and loss account debit side. Again this depreciation you have to show in balance sheet asset side. मशीनरी एसेट साइड में लिखेगा, मशीनरी का जो वैल्यू होगा वो लिखेगा, मशीनरी से डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा. कितना परसेंट? 10%. ओके, सिमिलरली फर्नीचर 20%. तो फर्नीचर डेप्रिसिएशन ऑल्सो यू हैव टू शो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अगेन इन बैलेंस शीट ऑल्सो यू हैव टू शो डेप्रिसिएशन डिडक्टिंग फ्रॉम मशीनरी. ओके, second point, partners will get interest on capital at 5% per annum. This already I have shown you. Partners interest on capital given. So here you have to show this one, profit and loss appropriation account debit side, interest on capital. This is an expense for the business, right, for the firm. So that's why this one you have to show higher in profit and loss appropriation account. This one is related to the partners. Okay, 5% you have to 5% here given for interest on capital. Next, Raju is entitled. अच्छा एक बात और, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट साइड में दिखाएगा. ठीक है, 2 पार्टनर या में, एक है राणा और दूसरा है राजू. ठीक है, तो राजू और राणा दोनों ने जितना कैपिटल लगाया उसका ऊपर इंटरेस्ट 5% चार्ज होगा और ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रीशिएशन अकाउंट में दिखाएगा. फिर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बैलेंस शीट में जाके कैपिटल का साथ फिर ऐड होगा. ओके, नेक्स्ट, राजू इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ ₹1800 पर एनम. तो राजू को सैलरी कितना दे रहा है? 1800 दे रहा है. ठीक है, तो ये पार्टनर से रिलेटेड है सैलरी, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट साइड में दिखाएगा क्योंकि ये सैलरी इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म. तो दैट्स व्हाई यू हैव टू शो डेबिट साइड. ओके, और पार्टनर से रिलेटेड है, दैट्स व्हाई दिस वन यू हैव टू शो इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रीशिएशन अकाउंट. ऑलरेडी दिस थिंग्स यू हैव डन. और फिर क्या करना है? ये सैलरी फिर बैलेंस शीट में जाके दिखाना है. ठीक है, ये सैलरी किसको मिला है? राजू को. तो राजू का जो कैपिटल है उस कैपिटल का साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होगा और फिर राजू का
साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ फिर क्या ऐड होगा, सैलरी ऐड होगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन राणा एंड राजू 3:2. Whatever the profit you earn, that profit will be distributed among the partners with this ratio. Okay, so now we'll see the solution. You try to understand. Okay, now you see here, first we will prepare profit and loss account for the year ended 31st March 2018. Okay, debit credit. See, जैसा हम लोग क्लास 11 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया एक्जैक्ट वैसा ही बनाएगा. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ था तो क्रेडिट साइड में होगा ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 57,000. क्रेडिट साइड में ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड में क्या दिया हुआ था, कमीशन दिया हुआ था 300. ठीक है, तुम लोग क्वेश्चन यहाँ में सॉल्यूशन हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो क्वेश्चन का साथ इसको मिलाना. ओके, नेक्स्ट, टू डेप्रिसिएशन एंड मशीनरी. तो डेप्रिसिएशन आएगा यहाँ में डेबिट साइड में, तो 10% दिया हुआ था मशीनरी का. तो मशीनरी का एक्चुअल वैल्यू कितना था क्वेश्चन में, मशीनरी जो है मशीनरी का वैल्यू 10,000 था और डेप्रिसिएशन कितना परसेंट चार्ज किया हुआ है, डेप्रिसिएशन मशीनरी का 10% और फर्नीचर का 20%. ठीक है, तो फर्नीचर का जो वैल्यू है यहाँ में देखो 20,860 रुपीज़. ठीक है, तो 10,000 का ऊपर 10% चार्ज होगा डेप्रिसिएशन, तो होगा 1,000. 20,860 का ऊपर 20% चार्ज होगा. तो देखो हमने यहाँ में एक वर्किंग नोट बनाया, डेप्रिसिएशन एंड मशीनरी 10,000, 10%, 1,000. फर्नीचर का ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा 20,860, 20%, 4172. ठीक है, ये दो अमाउंट अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में हमने लिखा. तो डेप्रिसिएशन एंड मशीनरी 1,000, फर्नीचर 4172, दोनों को प्लस करके यहाँ में लिख देना है. ओके, नेक्स्ट इज रेंट. रेंट यू हैव टू रिकॉर्ड डेबिट साइड 19740. नेक्स्ट सैलरी 9,000. ये कौन सा वाला सैलरी है, ये जो ट्रायल बैलेंस में सैलरी दिया हुआ था. ठीक है, यहाँ में. नेक्स्ट फिर क्या है यहाँ में, कमीशन. कमीशन डेबिट साइड में दिया हुआ था ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस, तो 5,000. ओके, so these are the items that you have to record here in profit and loss account. Now these two you have to add together, same total you write here. From this total deduct this one, this one, this one and this one. Whatever the balance, that balance is known as net profit. हम लोग को मालूम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी बैलेंस निकल कर आएगा, ठीक है ना, इस साइड में वो नेट प्रॉफिट होता है. अगर टोटल इस साइड में ज्यादा होता तो सेम टोटल ये मिल जाता, यहाँ से माइनस कर देता तो ये हो जाता नेट लॉस. ठीक है, ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी पूछा है फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018. तो दिस वन इज नॉट न्यू फॉर यू ऑल, क्योंकि ऑलरेडी किया हुआ है. ठीक है ना, तो सबसे पहले यहाँ में जो नेट प्रॉफिट आया, ये नेट प्रॉफिट यहाँ में ब्रॉट डाउन करना है बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 18588. ठीक है, नेक्स्ट पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड राणा राजू. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो हम लोग यहाँ में कैलकुलेट किया है वर्किंग नोट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है, राणा ने कैपिटल लगाया था 65,000, राजू ने कैपिटल लगाया था 40,000. 5% चार्ज किया है, तो 65,000 के ऊपर 5% चार्ज करेगा 3250, राजू 40,000 5% चार्ज करेगा 2,000. ओके, तो दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यार यू सी, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राणा 3250, राजू 2,000, दोनों को ऐड कर देगा, यहाँ में लिख दो. नेक्स्ट, पार्टनर सैलरी. पार्टनर सैलरी मैंने राजू यहाँ में जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है ना, क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पार्टनर्स विल गेट इंटरेस्ट ऑन, नहीं ये नहीं, राजू इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ ₹1,800. तो ये सैलरी है, पार्टनर से रिलेटेड है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा. और डेबिट साइड में क्यों आएगा, क्योंकि एक्सपेंस है. ठीक है, तो यहाँ में देखो टू पार्टनर सैलरी राजू 1,800 और कुछ नहीं था, बस टोटल सेम टोटल यहाँ में लिखो. इससे ये दोनों आइटम को माइनस कर देगा, करके जो बैलेंस आएगा, जो प्रॉफिट बचेगा, वो प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो जाएगा. तो यहाँ में लिखेगा 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट. राणा और राजू दो पार्टनर है, जिसका रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ था एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 3:2. इस रेशियो से प्रॉफिट को डिवाइड कर देना है. ओके, तो यहाँ में 2 नेट प्रॉफिट, यहाँ में 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट. अभी इस टोटल से इसको माइनस कर दिया, तो बैलेंस जो आया 11583, इतना प्रॉफिट आया. अभी ये प्रॉफिट 3:2 में डिवाइड होगा, 3:2, तो दोनों को प्लस करने से कितना होगा, 5 होगा. तो ठीक है ना, तो राणा का जो रेशियो है वो कितना है, 3, टोटल रेशियो 5. ओके, सिमिलरली राजू 2 और टोटल रेशियो 5. और कितना प्रॉफिट आया था, 11538, 11538. 11538 कैसे आया, इस टोटल से इन दोनों को माइनस करके जो बचा दिस वन. ओके, तो ये प्रॉफिट अभी दोनों में डिवाइड हो जाएगा. तो कैलकुलेट करने से
राणा का आएगा 6923 और राजू का आएगा 4615. तो इन दिस वे यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रीसिएशन अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रीसिएशन अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नाउ we'll check the balance sheet. Try to understand, okay? First you see asset side. Balance sheet as on 31st March 2018. Left side liability, right side assets. तो now you see here first machinery. तो क्वेश्चन में मशीनरी का वैल्यू कितना दिया हुआ था ट्रायल बैलेंस में 10,000 और मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज है, मशीनरी डेप्रिसिएशन है, क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था तो डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना है, मशीन का अमाउंट से डेप्रिसिएशन को माइनस करना है. तो 1000, ठीक है. तो 10,000 से 1000 माइनस किया 9,000. फर्नीचर का वैल्यू है 20,860 रुपीज और फर्नीचर में क्या डेप्रिसिएशन दिया हुआ था तो डेप्रिसिएशन माइनस करना है 20%. जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग डेबिट साइड में लिखा था 4172, इससे इसको माइनस कर देना है, ये लिख देना है, ठीक है. नेक्स्ट है डेटर एसेट्स है, इतना अमाउंट है. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एसेट्स है, यहाँ में लिख दिया. क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स है, लिख दिया, ठीक है. और कुछ आइटम नहीं बचा. अब ये सबका टोटल कर देगा तो 139988, ठीक है, इतना आएगा टोटल. अभी हम लोग लाइबिलिटी साइड में चला जाता है. सबसे पहले क्या करना है, कैपिटल लिखना है, पार्टनर्स का कैपिटल. तो 2 पार्टनर है, तो पहला पार्टनर कौन है, राणा. तो राणा कैपिटल हाउ मच 65,000. यू चेक द क्वेश्चन, ओके. 65,000. अभी राणा को जो जो मिला वो सब प्लस होते जाएगा. अगर राणा ने कुछ दिया या राणा का कुछ लॉस हो गया, पार्टनर का कुछ लॉस हो गया, वो माइनस कर देना है, ठीक है. जैसा राणा का कैपिटल कितना लाया था 65,000. इसका साथ क्या क्या ऐड करना है, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. पार्टनर राणा को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, ये प्लस होगा. फिर राणा को शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये देखो यहाँ में राणा को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, ठीक है ना, ये कैपिटल के साथ ऐड हो जाएगा, कैपिटल का साथ ऐड हो जाएगा. नेक्स्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट, राणा को प्रॉफिट कितना मिला 6923, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, ओके. नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन में ड्राइंग्स दिया हुआ था, हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है. क्वेश्चन में ड्राइंग्स दिया हुआ था, ड्राइंग्स, ठीक है ना. तो जब पार्टनर्स विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए तो वो क्या होता है, कैपिटल पर इफेक्ट होता है, कैपिटल डिक्रीज हो जाता है, ठीक है. तो राणा ने कितने विड्रॉ किया 4000, तो कैपिटल से 4000 माइनस कर देना है. राणा का जो कैपिटल है उस कैपिटल से क्या कर देना है, माइनस कर देना है. तो माइनस ड्राइंग्स 4000, ठीक है. तो ये दोनों इसका साथ प्लस करना है और फिर माइनस कर देना है 4000, तो आएगा 71173. सिमिलरली राजू का भी ऐसा ही लिखना है. राजू का कैपिटल कितना है 40,000. अभी राजू को क्या क्या मिला, राजू को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला. देखो यहाँ में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राजू का है 2000, ये 2000 यहाँ में लिख देना है, ठीक है. नेक्स्ट राजू को और क्या मिला, राजू को सैलरी भी मिला, कितना मिला 1800, ठीक है ना. तो राजू का कैपिटल के साथ सैलरी भी ऐड कर देना है, तो प्लस सैलरी 1800. राजू को और क्या मिला, शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला. देखो यहाँ में शेयर ऑफ प्रॉफिट राजू का कितना 4615, तो राजू का जो प्रॉफिट है वो भी ऐड कर देना है. और राजू ने विड्रॉ भी किया था, ठीक है ना, मतलब ड्राइंग से. क्वेश्चन में ये देखो क्वेश्चन, यहाँ में क्वेश्चन में ड्राइंग से राजू 3000, ठीक है ना. तो ड्राइंग होने से कैपिटल से क्या करना है, माइनस करना है, कैपिटल डिक्रीज हो जाता है, ठीक है. तो इसी तरह देखो यहाँ में ड्राइंग राजू का माइनस कर दिया, तो 40,000 प्लस 2000 प्लस 1800 प्लस 4615 माइनस 3000 करने से 45415 आएगा निकल कर. नेक्स्ट क्रेडिटर इज लाइबिलिटी, क्वेश्चन में दिया हुआ था 18400. बैंक लोन लाइबिलिटी 5000, ठीक है. और क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस ये सबको टोटल कर दो 139988, सेम टोटल मैच हो गया. तो इन दिस वे यू हैव टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप. वेरी सिंपल, वेरी इजी, ओके. यू ट्राई मोर सम. I will send you some more solution in my next video, okay. So thank you for today.